Hello everyone, so welcome to your on channel. In today's video, we will talk about translator. So we will learn what is translator, why do we need translator, what are the various types of translator, and in Java, what type of translator do we use. So let's start. So first, translator is a software that converts program written in high level language into the machine code. See, here we are taking only the high level language. We are not considering the assembly language, which is a low level language. Actually, assembler is also a translator, right? जो क्या convert करता है assembly language को machine code में. And assembly language is a low level language. So we are here considering only the high level language. That's why we will not talk about assembler here. We will talk about the translators, only those converts high level language into the machine code, right? सो ये ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. तो वाई डू वी नीड अ ट्रांसलेटर, क्यों ज़रूरत पड़ता है हमें ट्रांसलेटर का? सी everybody knows that computer understands only 0 1, right? But you are writing program in high level. High level means what? In English words, you will use the English words to give the instruction to the computer. So how the computer will understand? So for that case, we need a translator that converts those English words, or you can say the high level language, into the machine code so that the computer can understand that, right? So translator क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके, राइट? So there are two types of translator that converts high level language into the machine code. Compiler, interpreter, right? Third is assembler, but here we are not discussing assembler because assembler converts assembly language into the machine code, that is a low level language, right? चलिए, before coming to the compiler or interpreter, we will talk about two main terms which we will use commonly in this: source code and object code. So what is source code and what is object code? Source code, you can say program written in high level language. So program written in high level language is called source code, right? So what is a source code? Program written in high level language. And what is object code? Compiled code of a source program. Compiled code of a source program, right? तो जब हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं बाय यूजिंग द इंग्लिश वर्ड्स और इन हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स कोड. जो हमने प्रोग्राम लिखा वो सोर्स कोड है. बट व्हेन वी कंपाइल दैट सोर्स कोड, जब हम उस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो उसके बाद जो हमें कोड मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में. आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर. Next, we will see the difference between the compiler and interpreter. Okay, so to understand the difference between compiler and interpreter, let's take one example first. Suppose I want to address the people of Andhra Pradesh or Tamil Nadu or Kerala. So I should know their language: Andhra Pradesh, Telugu, Tamil Nadu, Tamil, and for Kerala, Malayalam, right? But I don't know that language. Then what will I do? I will take some translator with me, राइट? तो एक ट्रांसलेटर लेके जाएंगे. दो तरीके हैं. अब या तो जैसे एड्रेस कर रहे हैं, एक लाइन मैं बोलूँ इंग्लिश में और दूसरा ट्रांसलेटर उसको साथ साथ ट्रांसलेट करे. यू माइट हैव सीन द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, एक लाइन इंग्लिश या हिंदी में बोलेंगे और साथ वाला आपको ट्रांसलेट करके साथ साथ बताएगा. तो वो हो गया लाइव ट्रांसलेटर, लाइन बाय लाइन कर रहा है ना. एक लाइन मैंने बोला इंग्लिश में, वो बोलेगा आपका तेलुगु में सपोज. देन सेकेंड लाइन इंग्लिश में मैंने बोला, फिर वो बोलेगा आपका तेलुगु में, राइट? से तो ये एक हो गया तरीका लाइव ट्रांसलेटर. और दूसरा हो गया कि एक मेरा स्पीच है जो राइटअप है, तो वो पहले से ही ट्रांसलेट करके रख लिया.
तेलुगु में या फिर कोई और लैंग्वेज में, तमिल में, तो ट्रांसलेट करके अपने पास पूरा का पूरा स्पीच रख लिया बिफोर गोइंग टू द ऑडियंस। जैसे ही ऑडियंस के पास आएंगे दैट पर्सन कैन रीड फ्रॉम दैट पेपर। दो तरीके हैं, राइट। तो अब समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये लाइव ट्रांसलेटर कौन सा है और दूसरा कंपाइलर क्या है, सी लेट्स सी वन बाय वन। सो कंपाइलर का फर्स्ट पॉइंट है इट ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है, दोनों ट्रांसलेटर हैं, दोनों कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किस में, मशीन कोड में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इट ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट इट विल रीड द एंटायर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट्स इनटू द मशीन कोड, राइट। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स वन लाइन ऑफ ए प्रोग्राम एट ए टाइम, लाइन बाय लाइन। ये पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देगा और ये लाइन बाय लाइन करेगा। जैसे एग्जांपल दिया था ना कि एक लाइव ट्रांसलेटर है, लाइन बाय लाइन कर रहा है, और एक पहले से ही पूरा स्क्रिप्ट लिख के आया है तेलुगु में, वो बाद में सीधा ऑडियंस को एग्जीक्यूट करेगा, और ये साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि ये ट्रांसलेट करेगा सारा का सारा प्रोग्राम एक साथ, और ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, इट शोज ऑल द एरर्स ऑफ प्रोग्राम इन वन गो। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम में जो एरर है एक साथ दिखा देगा, लिस्ट ऑफ एरर्स। बट ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस वन एरर एट ए टाइम। कैसे, जैसे इंटरप्रेटर कौन यूज़ करता है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, पाइथन, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम पाइथन में 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने प्रिंट किया, प्रिंट हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। फिर हमने कुछ एरर कर दिया सेकेंड लाइन में, तो क्या करेगा, वो एरर दिखाएगा। मतलब पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, सपोज हमने कहाँ लिखे हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं, आई होप यू कैन सी दिस, प्रिंट हेलो, 3 स्टेटमेंट एक साथ लिख दी, ठीक है। प्रिंट 10/0, और उसके बाद फिर से लिख दिया प्रिंट, कुछ भी लिख देते हैं, बाय फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने 3 स्टेटमेंट लिख दिए, हमारा प्रोग्राम था ये पाइथन का। सपोज जब हमने इसको बाय यूजिंग द इंटरप्रेटर हमने इसको रन किया, तो क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया उसने, तो आउटपुट कैसे दिखाएगा, वो हेलो प्रिंट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया, लाइन बाय लाइन करता है वो, लाइन करेक्ट थी, पहला एग्जीक्यूट कर दिया, फिर सेकेंड लाइन में आया तो हमने दिया 10/0, तो 10/0 व्हेन यू डिवाइड बाय 0 तो वो एरर दिखाता है। तो यहाँ पे उसने सेकेंड लाइन में आपको एरर शो कर दिया। तीसरी लाइन पे नहीं आएगा वो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सेकेंड लाइन का एरर करेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो थर्ड लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है इंटरप्रेटर का काम करने का तरीका। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट, सेकेंड एरर, और थर्ड लाइन पे वो गया ही नहीं है। तो जब मैं इस एरर को करेक्ट कर दूंगी और फिर से हम इसको रन करेंगे, तब वो दोबारा हेलो दिखाएगा, सेकंड का आउटपुट दिखाएगा, फिर थर्ड पे आएगा, ठीक है। अगर दोनों में एरर है सेकंड और थर्ड में, तो पहले सेकंड को करेक्ट करना होगा, फिर थर्ड को, उसके बाद साथ साथ नहीं, पहले सेकंड का ही शो करेगा, फिर सेकंड का हम उसको करेक्ट करके फिर दोबारा रन करेंगे, फिर थर्ड लाइन का एरर शो करेगा। तो इट शोज द एरर लाइन बाय लाइन। तो एट ए टाइम ये वन एरर शो करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। और ये क्या करता है, सारे प्रोग्राम का एक साथ जितने भी एरर हैं 5-6 पूरे प्रोग्राम में, सब लिस्ट ऑफ एरर एक साथ दे देगा। देन द थर्ड पॉइंट इज एरर हैंडलिंग इज फास्टर एज वी कैन करेक्ट ऑल द एरर्स इन वन गो, ठीक है। हमें लिस्ट ऑफ एरर्स एक साथ दिख रहा है, तो हम सारे एरर्स एक साथ करेक्ट कर सकते हैं। इसमें एरर हैंडलिंग इज टाइम कंज्यूमिंग है ना, पहले सेकंड का ठीक किया, फिर दोबारा रन किया, फिर हमें थर्ड का पता लगा, फिर थर्ड का ठीक किया, फिर पता लगे 6th लाइन में है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देन फोर्थ पॉइंट इज इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कोड, इट डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड। इसका क्या मतलब है, ये बात समझते हैं। देखिए, सो इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोड क्या पढ़ा था हमने, कंपाइल्ड कोड ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। जब हम सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट कोड मिलता है, लेकिन जब हम इंटरप्रेटर यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, देखो कंपाइलर का हमने एग्जांपल दिया था, वो पहले से ही अपना ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट जैसे लिखा हुआ है, यानी कि इसमें क्या है, पहले इसको ट्रांसलेट करके वो सेव कर देता है। जो भी सोर्स प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट किया और उसको सेव कर दिया,
तो वो हमें ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में मिल जाते हैं। और ये क्या करता है, जैसे लाइव ट्रांसलेटर ने क्या किया, सीधा फर्स्ट लाइन उसने बोला, दूसरे लाइन को उसने ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर दिया साथ के साथ, कहीं सेव नहीं कर रहा। अभी थोड़ी देर के बाद उसको खुद नहीं याद रहेगा कि हमने तीसरी लाइन क्या बोली थी, है ना। वो भूलता जा रहा है, बोलता जा रहा है और भूलता जा रहा है, कहीं सेव नहीं है, उसके पास सेव है सारा का सारा स्क्रिप्ट। तो यही है, इट डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड। वो ट्रांसलेट करके उसको सेव नहीं कर रहा, सीधा एग्जीक्यूट कर रहा है ऑडियंस को, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। और इसमें आपका सेव होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। लास्ट है, वही इसी से रिलेटेड है, इट सेव्स द कन्वर्टेड प्रोग्राम इन न्यू फाइल विच इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। ये सेव करता है एंड इट डज नॉट सेव द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। I hope you have understood the difference between compiler and interpreter. तो कंपाइलर कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, सी में होता है, C++ में होता है, और इंटरप्रेटर एज आई टोल्ड यू पाइथन में होता है। तो जावा में क्या होता है, लेट्स सी। Okay, so now we will see Java uses what type of translator. तो आंसर इज Java uses both compiler and interpreter. दोनों को यूज़ करता है। कैसे करता है, let's see through the diagram. So first, Java source code is converted into the byte code after compilation. ठीक है, तो व्हेन वी कंपाइल द सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड, यहाँ हम जावा की बात कर रहे हैं, कोई और दूसरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। तो व्हेन वी कंपाइल दिस जावा सोर्स कोड, व्हाट वी गेट, बाइट कोड, राइट। आपको दूसरी लैंग्वेज में क्या मिलता है, दूसरी लैंग्वेज में भी लिखते हैं, दूसरी लैंग्वेज मीन्स ऑर्डिनरी कंपाइलेशन। ऑर्डिनरी कंपाइलेशन हम किसको बोल रहे हैं, जो जावा से अदर लैंग्वेज है, लाइक C++, ठीक है, जावा कंपाइलेशन। ऑर्डिनरी कंपाइलेशन C और C++ के केस में, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है इसमें, व्हेन यू कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम, या सोर्स कोड भी लिख सकते हो, सोर्स प्रोग्राम, आफ्टर कंपाइलेशन व्हाट यू गेट द ऑब्जेक्ट कोड, नोट बाइट कोड। आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट कोड, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ऑब्जेक्ट कोड का, है ना। आफ्टर कंपाइल्ड कोड ऑफ सोर्स प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमें मिलता है C++ की लैंग्वेज। बट इफ़ यू रेफर द जावा, जावा के केस में क्या मिलता है हमें, आफ्टर कंपाइल, व्हेन यू कंपाइल सोर्स कोड वी गेट द बाइट कोड, ठीक है। तो इफ़ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ द बाइट कोड का डेफिनेशन बोल सकते हो, कंपाइल्ड जावा सोर्स कोड, compiled Java source code is called the bytecode. Or you can say when we compile the source code written in Java, then we get the bytecode. तो जावा का प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे तब हमें बाइट कोड मिलेगा। अब ये बाइट कोड क्या है, बाइट कोड यू कैन से इट्स एन इंटरमीडिएट कोड, इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड, और हाफ प्रोसेस्ड कोड, हाफ प्रोसेस्ड कोड, ठीक है। बाइट कोड क्या है, एक इंटरमीडिएट कोड है। इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में जनरेट हुआ है, मशीन कोड नहीं बने इसके अभी, बीच में ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया है, बाइट कोड। मशीन कोड होना चाहिए था ना जब हम उसको कंपाइल करते हैं, तो बट जावा के केस में आफ्टर कंपाइलेशन वी गेट द इंटरमीडिएट कोड, दैट इज़ द बाइट कोड। और इसको बोलते हैं हाफ प्रोसेस्ड कोड। हाफ प्रोसेस्ड कोड मतलब इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा बाइट कोड, कंप्यूटर को क्योंकि क्या समझ आता है, मशीन कोड। तो अभी मशीन कोड तो जनरेट ही नहीं हुए हैं, हमारा बना है बाइट कोड। अब ये बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम बोलते हैं जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है, वो किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाइट कोड जनरेट होता है और ये बाइट कोड आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएंगे, मतलब यूनिक्स पे भी, लाइनक्स पे भी, एंड्रॉयड पे भी, iOS पे भी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएंगे। बट जब हम दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, आफ्टर कंपाइलेशन जब हमें ऑब्जेक्ट कोड मिलता है, ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, एक ही बात है, मशीन डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। बट बाइट कोड आपका, बाइट कोड क्या है, प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? इट कैन बी रन ऑन यूनिक्स, इट कैन बी रन ऑन लिनक्स या लिनक्स, और इट कैन बी रन ऑन iOS और एंड्रॉयड वटेवर, ठीक है। बट ये आपका मशीन डिपेंडेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी ऑर्डिनरी कंपाइलेशन और इन जावा कंपाइलेशन। और ये बाइट कोड ही जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब एज इट इज़ हाफ प्रोसेस्ड कोड, अब हमें उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? JVM। JVM क्या है आपका? इंटरप्रेटर है, जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM इज एन इंटरप्रेटर विच कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू द मशीन कोड। तो फाइनली हमें मशीन कोड चाहिए था ना, तो किसकी हेल्प से मिला हमें? JVM, जो एक्ट एज एन इंटरप्रेटर। तो ये कंपाइलर क्या है जावा में? जावैक, जैवैक बोलते हैं या जावा C भी बोल सकते हो। जैवैक कंपाइलर है और JVM इंटरप्रेटर है, ठीक है। और जो आफ्टर कंपाइलेशन हमें बाइट कोड मिला, तो बाइट कोड जब हम मिलता है, जैसे ऑब्जेक्ट कोड मिलता है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .obj, है ना। जब हम बाइट कोड मिलता है उसकी एक्सटेंशन होती है .class। जो भी फाइल है उसकी एक्सटेंशन होगी .class, और ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन होती है आपकी .obj, ठीक है। बाकी ये मशीन कोड है। तो ये है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस, right? And if somebody asks what is the difference between ordinary compilation and the Java compilation, so you can tell the two difference. First is in Java compilation, after compiling the source code we get the bytecode, which is an intermediate code, and but in other, after compilation we get the object code. Second reason is object code is machine dependent, but the byte उसमें लिखेंगे second reason difference, byte code is machine independent. So two differences you can write. And what is JVM? It's a Java virtual machine which act as an interpreter and which converts byte code into the machine code. I hope this is clear. So that's it in this video. I hope you have understood the concept of translator. Thanks for watching.